matrices. This is our new topic today, matrices, that is algebra of matrices. So write down the name of topic, algebra of matrices. This is very much similar to the topic which we have done in 10 plus 2 class or 10 plus 1 class. So you must know the basic of the algebra of matrices. That what is a matrix. So how to solve matrices and what is the sum of two matrices or what is the product of or multiplication of two matrices. You must know all these things. So let me give you the basic definition of a matrix. A matrix of mn numbers assigned in the form of an ordered set of m rows and n columns. M is the number of rows and n is the number of columns. Then we will be able to find out m by n matrices, and the m by n matrices will be denoted by A, and that is a matrix A I J, which is m by n, and its elements will be written like this: A11, A12, and so on, A1n. That is, and then second row is A21, A22, and A2n, and the last one is AM1, AM2, and AMN. हाँ जी। तो बेटे एक बार अब आपने दरवाजा खटका दिया तो इसका मतलब कोई बिजी होएगा ना। आ जाओ दरवाजा खोल करके, लगाओ इन्हें, जोर लगाओ, खोलो दरवाजा। ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਲਓ तो मैं ਤੁਹਾਡੀ जगह बाहर चल जाना। फिर जो दरवाजा खटकाया अगर नहीं बोले तो बाहर रहना चाहिए ना। आई एम टेकिंग क्लास, वेट फॉर देयर। So we have a matrix in which the rows are there and the columns are there. So these are the number of elements. M by n matrix is there, m rows are there, and n columns are there. So this is the basic definition of a matrix. You know that how to find out the sum of two matrices and how to find out the product of two matrices. Now let us come to the important part. Okay, I will do today some basics or the basic properties of the matrices. The properties are A transpose is A. ये प्लस टू में ही करी हुई है, and the property is A plus B transpose is A transpose plus B transpose. And you know what is the meaning of a transpose? Row become a column. ये प्लस टू में आपने पढ़ा है. And we can also have the property A B transpose is B transpose A transpose, and the fourth property is K A transpose is K is a scalar, it can be written as it is, so K A transpose. So these are important properties of a matrix. एक इसमें और चीज है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है we must give the proper definition of a symmetric matrix. Any square matrix is said to be symmetric if Aij is equal to Aj. प्रॉपर डेफिनेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि प्लस इसमें एग्जाम में दो दो नंबर में डेफिनेशंस भी बहुत आ जाती हैं. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जो i और jth एलिमेंट होएगा
I and jth element of A will also be the jth and ith element of A. This is the meaning of a symmetric matrix. What does it mean? It means rows will become column and column will become row. And this is the meaning of symmetry. किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है. This is the meaning of a symmetric matrix. Okay? Yes, sir. किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाता है. जैसे सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स 1 2 4 and 2 5 1 and 4 1 7. नाउ यू जस्ट सी, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए. पहली बात, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ये आपने +2 में भी पढ़ा होगा. स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेम होते हैं. जितनी रोज उतने ही कॉलम. अगर m रोज और n कॉलम्स विल बी सेम, जैसे इसमें 3 और 3 है, m is equal to 3 and n is equal to 3. So this is a square matrix. और इसका ट्रांसपोज लीजिए, ए ट्रांसपोज. फर्स्ट रो इज 1 2 4, इसको कॉलम बना दो 1 2 4. सेकंड रो इज 2 5 1, इसको कॉलम बना दो 2 5 1. 4 1 7 4 1 7. और दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों सेम मैट्रिसेस हैं. सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है. सो दिस इज इक्वल टू अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब दूसरा डेफिनेशन आता है स्क्यू सिमेट्रिक. ये मैट्रिसेस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी. स्क्यू सिमेट्रिक मीन व्हेन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, दैट यू कैन से दैट इज समवट, इसको हम जो ऐसा कह सकते हैं कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए आई जे टाइप, is said to be skew symmetric matrix if Aij will be equal to minus of Aj. इसका मतलब क्या है कि जो ijth एलिमेंट होएगा is the same as नेगेटिव ऑफ j और ith एलिमेंट, वो उसके नेगेटिव के बराबर होएगा, jth और ith एलिमेंट. So this is the meaning of skew symmetric matrix. सर वैल्यू भी तो अलग हो सकती है. वैल्यू अलग नहीं होएगी, वैल्यू अलग नहीं होएगी. इसका सीधा मतलब मैं ऐसे आपको बता देते हैं कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा. नेगेटिव लेकर के वो बनना चाहिए. इसकी 1 मिनट रुक जाइए बस. स्क्यू सिमेट्रिक में ना हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है इसी को लेकर के. हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, इसमें रोज हैं 0 1 2 and -1 0 3 and x -3 0. This is matrix A, and they are saying that A is a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Find x. This is the question to us. हमने x फाइंड करना है by using the property of skew symmetric. तो because A is skew symmetric, और स्क्यू सिमेट्रिक का सीधा मतलब होता है कि जो ए आई जेथ एलिमेंट होएगा वो नेगेटिव ऑफ ए जे आयथ एलिमेंट होएगा. इज इट सो? यही मतलब था ना लिखा. यस. तो इससे हमारे पास क्या आता है, इससे हम लोग यूज करके ये निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट है A31, मतलब थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट. 3 1 का मतलब है 3 मतलब रोज,
1 2 3 3 rows का first element, that is x, will be equal to negative of first element of third row, sorry, first row का third element, and सर A12 आएगा। हाँ जी, सर A12 आएगा। ना 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 3 1 है ना, 3 1 इस हिसाब से देखो ना, 3 1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A13, फर्स्ट रो, जो पहला लेटर है, पहला सबस्क्रिप्ट है, वो रो के लिए है, 1 का मतलब फर्स्ट रो, 3 का मतलब थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट कौन सा, 2, सो नेगेटिव ऑफ 2, x should be equal to negative of 2, ओके। ओके सर। ये ऐसे भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, मान लीजिए आप बोलिए A21 should be equal to negative of A12, suppose, what is A21, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो कौन सा है, दिस वन, इसका फर्स्ट एलिमेंट -1 कौन सा है, -1, दैट इज अ नेगेटिव। अब फर्स्ट रो का 1 2 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट कौन, 1, ठीक है, दोनों ठीक है, सब बराबर होते हैं दोनों, Yes, sir. एनीथिंग एल्स, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट शुड बी नेगेटिव ऑफ फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ऐसे भी हो सकता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 शुड बी नेगेटिव ऑफ फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, कोई फर्क नहीं है, 0 विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 0 मीन 0, वो कोई फर्क नहीं है, ओके। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ असिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जो हमारे पास इसमें प्रॉपर्टीज आती हैं, दे आर सेइंग दैट, ऐसे हमें क्वेश्चन प्रूव करना आ जाता है। अच्छा, उससे पहले ये लिखिए, ये हम बाद में भी करेंगे, कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट आपने पढ़ा हुआ है, हैव यू हर्ड अबाउट कॉन्जुगेट, यस सर, ए के ऊपर सर मोड हो जाएगा। ए के ऊपर बार, बार बार उसको बार बोलते हैं उसका कॉन्जुगेट, ए के ऊपर बार का मीनिंग ये भी है, AIJ बार, सो देयरफॉर व्हाट डज इट मीन, AIJ बार, AIJ bar denotes the conjugate of AIJth element, and also ये property है, A conjugate is equal to A if all elements of A are real, रियल का मतलब रियल नंबर, क्योंकि जब कॉन्जुगेट आता है तो फिर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट की भी बात होती है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है, ए कॉन्जुगेट एंड अगेन कॉन्जुगेट विल ऑलवेज बी ए, ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रां कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रां कॉन्जुगेट मीन इफ ए ट्रांसपोज एंड इट्स कॉन्जुगेट, दिस इज सेड टू बी ट्रां ट्रांजुगेट, इसको बोल देते हैं ट्रांजुगेट of a matrix by taking a transpose then a conjugate, it is denoted by a raised to power theta, remember that। और एक और बात ख्याल रखिएगा, a transpose and then conjugate is same as a conjugate and transpose, ये दोनों वैल्यूज भी सेम होती हैं, चाहे पहले कॉन्जुगेट ले लीजिए फिर ट्रांसपोज हो जाए, और चाहे ट्रांसपोज लेकर के फिर कॉन्जुगेट ले लीजिए, तो इसका मतलब भी ए थीटा ही है, ए रेज टू पावर थीटा, एंड ए रेज टू पावर थीटा इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, दोनों डेफिनेशन याद रखिएगा, और ए थीटा रेज टू पावर थीटा ए ही होता है, ये प्रॉपर्टी भी आपने याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टी से आगे बनेगा, ये डेफिनेशंस हैं जो हम कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स,
Hermitian matrix. If remember that if a theta theta ऊपर लीजिए, if a raised to power theta is equal to a, then it is said to be Hermitian matrix. Or if a raised to power theta is a negative a, it is said to be skew Hermitian matrix. ये डेफिनेशन भी है स्क्यू हर्मिशियन, रिमेंबर दैट, ये हर्मिशियन का डेफिनेशन, ये स्क्यू हर्मिशियन, इसमें सिंपल है, इसमें नेगेटिव ऑफ ए, एंड two properties are also there. A plus b raised to power theta is a theta plus b theta. This is a property. Second, a b raised to power theta is b theta and a theta. This is the second property. ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है, आपको भूलनी नहीं चाहिए कि a raised to power theta will always be, क्योंकि k एक स्केलर है, स्केलर के ऊपर बार a थीटा, ये आपने याद रखना है। ये भी एक प्रॉपर्टी है स्क्यू हर्मिशियन। एंड एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये भी एक याद रखना है। इसको आप प्रॉपर्टी नंबर 4 कह सकते हैं, और उसको लिख सकते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, बट ओनली इन वन वे, एक ही वे में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओनली इन वन वे। So let us use this property. इस प्रॉपर्टी को क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं। We have a matrix A minus 2 3 1, that is 1 3 2, and that is 5 minus 4 5। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम लोग दो मैट्रिसेस बनाएंगे। दो मैट्रिसेस कौन कौन से, एक ए बनाएंगे और एक उसका ट्रांसपोज लेंगे। सो द मैट्रिक्स ए इज रिटन एज -2 3 1 1 3 2 5 4 5, ऐसे लिख लीजिए। ए ट्रांसपोज ले लीजिए, ए ट्रांसपोज इज -2 3 1 1 3 2 5 4 5। सॉरी, सिमेट्रिक की बात करनी है अभी, ट्रांसपोज हर्मिशियन की नहीं करनी है, सिमेट्रिक की। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज आई हैव टू से, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो हमने ए और ए ट्रांसपोज लिख दिया, देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज कम आउट टू बी, दोनों का सम -4 4 6, that is 4 6 -2, that is 6 -2 10। So this is the sum of the two matrices. Now what is this? 2 can be taken out, -2 2 3, and this is 2 3 -1 and 3 -1 5। So this is we have। और आप क्या करिए, इसको 2 कॉमन ले लिया ना, जो 2 को उधर ले जाइए, तो इट कम आउट टू बी 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और मैट्रिक्स कौन सा, -2 2 3 2 3 -1 3 -1 5। तो ये हमने लिख दिया। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान से देखिए, दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसी के बराबर आएगा। देखो -2 2 3, तो -2 2 3 जो रो है वही कॉलम है। सेकंड रो देखिए, सेकंड कॉलम है 2 3 -1 2 3 -1 3 -1 5 3 -1 5। दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होती है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सो दिस इज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया ये देखिए। एंड सिमिलरली वी कैन हैव ए माइनस ए ट्रांसपोज, माइनस करके क्या आ जाता है 0 2 -4, ये आप चेक भी कर सकते हैं -2 0 6 4 -6 0। So 2 can be taken common, 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0, ये कॉमन निकाल करके आ जाता है। और इस 2 को अगर उधर ले जाएं तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 0 1 -2 -1 0 3 and 2 -3 0। Just see, and this is a skew symmetric matrix. You can check that skew symmetric matrix, that is 0 1 -2 है और ये है 0 -1 2, मतलब ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। ये स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। सो इट मीन इट हैज आल्सो बीन एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, नाउ ए कैन बी रिटन एज 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ध्यान से देखिए, क्योंकि इसको सॉर्ट आउट करके क्या आ जाता है, ये आ जाता है a/2 प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस a/2 माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। ये तो खत्म हो जाएगा, a/2 क्या देगा, a ही देगा। so that is why we can write down like this। now let us see what is a is given to us, the matrix a is -2 3 1 1 3 2 5 -4 5। this is your a and this is the value, what is the value of this, ये भी मैट्रिक्स हमने निकाला हुआ है -2 2 3 2 3 -1 एंड 3 -1 5। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब रोज और कॉलम्स सेम सेम है, और सेकंड वाला जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, दिस वन, और इसकी वैल्यू 0 1 -2 और -1 0 3 2 -3 0। नाउ अब चेक कर लेते हैं, -2 + 0 दैट इज -2, 2 + 1 3 होता है, 3 -2 1, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होकर के यही देंगे आपको। सो व्हाट इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज symmetric matrix, and what about this skew symmetric matrix? So A has been expressed as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। तो हम इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में हर्मिशियन के बारे में करेंगे। हर्मिशियन में भी ये पॉसिबल, यही प्रॉपर्टी, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स प्लस स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये हर्मिशियन के केस में भी ऐसा पॉसिबल है। सो थैंक यू, आई स्टॉप माय क्लास हियर, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस।